Meanwhile, national capital Delhi continues to battle the coronavirus pandemic, and Chief Minister Arvind Kejriwal has today declared that all 11 districts as hotspots, as total cases claimed to be 1,823 in Delhi. 77 areas are declared as containment zones, and movement is strictly prohibited in these areas. He's also added that Delhi is one of the worst hit states because many tourists travelled from the city to different parts of the country, also highlighting the Nizamuddin Markaz event. 9 health workers of Delhi's Lady Hardinge Hospital tested positive for the virus. They all are undergoing treatment and in Delhi's civil lines. Meanwhile, one Oberoi apartment has been made as a containment zone after 8 people, including family members and domestic help, tested positive. Last evening, 31 members from one single family in Jahangirpuri also tested positive. The entire area has been turned into a containment zone. After Jahangirpuri, another second largest cluster of COVID positive case was here in one of the VVIP posh area of Delhi civil lines in Oberoi apartment. 8 people were detected positive, and resulting that this area has been now converted completely into a hotspot by the government. That's a Delhi police barricade, and the bridge has been made in this contaminated area, preventing any entry or exit. In fact, all the essential items which are required by the people, those who are living inside, are being dropped here at the barricade point, which is later supplied by the security and other staff of this apartment and this complex. 8 people were detected. They all are being taken to hospital. The history is also being traced. After Jahangirpuri, this was the second largest cluster. So clearly it's going to be a challenging time looking at the number of cases rising in the capital. Mass testing will also be carried out, including in these hotspots where Operation Shield will be carried out. Right outside in civil lines, one of the hotspots. With Sanjay Kumar, this is Ashutosh Mishra reporting for India Today. रोज कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं जहां पे ऑपरेशन शील्ड लागू किया जाता है. आज की डेट में 77 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं दिल्ली के अंदर. हमने कंटेनमेंट जोन्स में रैंडम टेस्टिंग कराई थी. कहीं से 200 का सैंपल लिया, कहीं से 180 का सैंपल लिया, कहीं से वहाँ पे रैंडम टेस्टिंग कराई थी. वहाँ पे निकल के आया कि कुछ कंटेनमेंट जोन्स जहाँ पे लोगों ने बात मानी, लोगों ने अनुशासन का पालन किया, लोग अपने अपने घरों में रहे, वहाँ पे एक भी नया केस नहीं आया. लेकिन जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी और लोग गलियों में निकल आए, हम उस कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी को नहीं आने देते, बाहर किसी को नहीं जाने देते. लेकिन अंदर लोग एक दूसरे के घर में जाते रहते हैं. लोग नहीं मानते. काफ़ी उनको मनाने की कोशिश की जाती है, सख्ती करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई जगह लोग नहीं मानते. कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे. तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है, वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले. और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी, वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं. 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं. इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है. किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी. उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है. उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर. ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है. बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है. कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है. किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो घूमता रहता है, और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है. दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश के जितने कोरोना के मामले हैं उसका 12% मामले कोरोना के दिल्ली में हैं. क्यों? दिल्ली देश की राजधानी है. इसीलिए दिल्ली को कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई इस टाइम दिल्ली लड़ रही है. पिछले 2-2.5 महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए, वही लेके आए कोरोना विदेशों से. अपने देश में तो था नहीं. जितने विदेशों से लोग आए, सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में आए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है. अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और भी कई जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं. सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आए. उनको हमने क्वारंटाइन में रखा, लेकिन उसके पहले नहीं रखा था, बाद में आई गाइडलाइंस. तो सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी. मरकज़ के अंदर जो
इंसिडेंट हुआ, उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। इसे दिल्ली पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ी। In fact, India Today's Ashutosh Mishra also spoke just a short while ago to Delhi Health Minister Satyendra Jain on rapid antibody testing that is going to begin from tomorrow and what steps the government is taking to contain the spread. Listen into this exclusive conversation. कल जो 186 वो सारे नए केस नहीं हैं? नहीं, नए तो हैं। नए में मतलब जैसे सैंपल को टेस्ट जब कर रहे होते हैं लैब वाले लोग, तो लैब में अगर कोई उनको शक होता है तो उसको दोबारा चलाते हैं। उसकी वजह से रिपोर्ट मान लो जो परसों आनी थी वो भी कल आई, या उससे एक दिन पहले आनी थी वो भी कल आई। इस वजह से तो उनको वो इकट्ठा बंच हो जाता है, इकट्ठा, तो उस बंच में से हैं। ये शुरू होने जा रहे हैं स्पेशल रैपिड टेस्टिंग किट्स, आप केंद्र सरकार से वो भी मिल चुके हैं। वो प्रक्रिया कब, कहां और कैसे शुरू होगी? देखिए, आज इसका ट्रायल रन स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ सबकी ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रायल रन भी आज होगा, ट्रेनिंग भी आज होगी, कल से इसको बड़े स्केल पे चालू किया जाएगा। अगर आप ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं तभी संक्रमण का सही अंदाजा लग पाएगा, क्या ये रैपिड टेस्ट उसी दिशा की ओर है? बिल्कुल, रैपिड टेस्ट बिल्कुल उसी दिशा में। और दूसरा क्या फायदा है इसका कि आप एक दिन में हजारों में कर सकते हैं। जो RT-PCR टेस्ट है वो कंफर्मेटरी है, वो उसके बाद कर सकते हैं। भाई आपने 1000 लोगों को किया, उसमें से आपको 20 लोग पॉजिटिव आ गए, तो उन 20 का दोबारा टेस्ट कर लीजिएगा। कितने दिनों में कितने टेस्ट का लक्ष्य रखा है सरकार ने? हमने लक्ष्य रखा है ये 42,000 जो है हम एक हफ्ते में करना चाह रहे हैं। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.